Namaskar, hello and welcome viewers. You're watching Committee Report with your host Kriti Mishra. Today we'll take a closer look at the report of the Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on Ayush Systems, the way forward. Ayush systems of medicine include Indian systems of medicine and homeopathy. Ayush is an acronym for Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and homeopathy. Ayurveda is the oldest system with a documented history of its practice for more than 5,000 years, whereas homeopathy is in practice in India for around 100 years. These systems are being practiced in the country with diverse preferences of people and infrastructural facilities. The Ayush market currently stands at a whopping $10 billion and it is projected to see an impressive 50% increase over the course of next 5 years. Having no FDI limits, this sector has massive potential for exponential growth, especially in times of public health crisis. Before the detailed analysis, let's take a look at this report. The committee takes cognizance of the growing importance and emergence of Ayush systems in public healthcare system. It appreciates that the National Health Policy 2017 strongly advocated mainstreaming the potential of Ayush within a pluralistic system of integrative healthcare and re-emphasizing the need for integrating Ayush in the National Health Mission, research and education. The committee recommends the ministry to lay focus on the implementation of its schemes, maintaining high standards of education and research and regulation, and control over quality and safety of Ayush drugs. And for deeper insights on the observations and recommendations of the committee, I'm joined by an illustrious panel of guests. Joining us in the studio, Mr. Anil Agarwal, Rajya Sabha member of the BJP. He's also the member of the Parliamentary Committee on Health and Family Welfare. Also in the studio, we have with us Mr. D. Senthil Pandian, Joint Secretary, Ministry of Ayush. Namaskar. And joining us through virtual platform, Dr. J.L.N. Shastri, CEO, Jatas Herbals Limited. He has also been former CEO of National Medicinal Plants Board. I welcome all of you on Sunset TV and thank you so much for joining us. And Agarwal sir, let me begin the program with you. In its report, the Parliamentary Committee on Health and Family Welfare observed that right now, the allocation for Ayush Ministry out of the total health and family welfare budget is a meager 2% and it needs to be increased by 10%. Tell us about the potential of Ayush systems and of course the way forward that we're discussing. No, as you said, it is 2%, but in coming years it will be certainly increased. And I feel that if we increase the budget of Ayush, so certainly it is going to help. And in our old systems, we have much more to show the world, and of course in COVID period we have shown that our herbal medicines, our Ayush system is much more stronger. आप देखिए कोविड में जिन लोगों ने भी हमारे उन चीज़ों को अपने ऊपर लागू किया है तो नेचुरली उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है और आने वाले समय में लोग आयुष मंत्रालय की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, उससे बहुत लाभ होने जा रहा है और बहुत इसमें काम हो सकता है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हर्बल हैं जिनका अभी एक तरह से सर्टिफिकेशन होना बाकी है। अगर वो सब सर्टिफाइड हो जाएंगी तो लोग उनको और तेज़ी से यूज़ करेंगे और जो आपने कहा है ये मार्केट जो है ये डबल नहीं ट्रिपल और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और आज दोबारा लोग एलोपैथी मेडिसिन्स को छोड़ के जहाँ जहाँ होम्योपैथी और ये अपना जो किचन होम किचन ग्रैंड मदर्स किचन में जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसकी ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं और वो सारी की सारी चीज़ें बड़ी यूज़फुल हैं। तो उसको हम लोग को मिनिस्ट्री को मैंने एक बार माननीय मंत्री जी से भी इस बारे में रिक्वेस्ट की थी, हम अपनी रिपोर्ट में भी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं, जो आयुष मंत्रालय का बेसिक है, उस पे हम लोग काम करें। और ऑफ कोर्स योगा तो इसके लिए वंडर्स कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पे आज पूरी दुनिया 21 जून को विश्व योगा दिवस मना रही है और मुझे खुशी है कि लगभग सभी देशों ने इसको अपनाया है और मुझे तो लगता है आने वाले समय में यूरोप, अमेरिका इसको बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं, रादर देन आई कैन से हिंदुस्तान से ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। और कोविड में देखा जिन लोगों ने योगा किया या जो योगा करते थे उनका रिकवरी रेट बेटर था,
उनकी जो अगर कोविड अटैक हुआ भी तो उनका पोटेंशियल मतलब उतना ज़्यादा नहीं था उनके ऊपर अटैक। जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर तो अगर हम काम करेंगे, बजट बढ़ाएंगे तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। Absolutely, sir. As you said, that there's massive potential. But Mr. Pandian, I'd like to understand. The ministry has been talking about Ayush at 47. Now, what are these short-term goals? What are these long-term goals, and how do you plan to achieve them? माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 2047 के लिए एक विस्तृत योजना हमने तैयार किया है। उसके लिए हमने मंत्रालय की तरफ से 4 मुख्य क्षेत्र को हमने चिन्हित किया है। उसमें प्रथम क्षेत्र है रिसर्च, दूसरा क्षेत्र है एजुकेशन, तीसरा है पब्लिक हेल्थ सेक्टर, चौथा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इस तरह का 4 सेक्टर में सेक्टर वाइज हमने एक कार्य योजना हमने तैयार किया है। प्रथम हमारा जो है रिसर्च में अगर आप देखा जाए, हमारा अलग अलग स्ट्रीम है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा-रिगपा। तो अलग अलग सिस्टम वाइज हमारा सेंट्रल रिसर्च काउंसिल्स है और अपने अपने क्षेत्र में जो रीजनल लेवल में वी हैव रीजनल रिसर्च काउंसिल्स। उन सभी लोगों ने अपने अपने जो है हमारे जो परंपरागत जितने भी हमारा चिकित्सा प्रक्रिया है उसके बारे में पूरा डिटेल रिसर्च करके एक पूरा स्टैंडर्डाइज करते हैं, वो रिकमेंडेशन करते हैं। उसी रिकमेंडेशन को हम पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के माध्यम से पब्लिक तक हम ले जाने का हम योजना तैयार कर रहे हैं। हमारा 2047 तक हम हर एक जो है रिसर्च काउंसिल का ऐसा हम स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना चाहते हैं जो वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल का हम इम्प्रूव करके उसको अचीव करना चाहते हैं। इसी तरह एजुकेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारा जो है 2 कमीशन गठित किया गया है। पूर्व में अलग अलग जो है क्षेत्र में इस तरह का जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए जो कॉलेजेस का परमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर काफ़ी इश्यूज था, उसको दूर करने के लिए एक इंडिपेंडेंट कमीशन का जो है इसमें स्थापित किया गया है पिछले साल। उसके बाद से अगर आप देखा जाए तो इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से कॉलेजेस का परमिशन देने का तरीका और वहाँ पर जो है क्वालिटी एजुकेशन, वहाँ से क्वालिटी मैन पावर डेवलप करने का इस तरह का कार्य योजना तैयार किया गया है। उसी के तहत अगर आप देखेंगे तो फिर आने वाले टाइम में 2047 से पहले हम ये अचीव करना चाहते हैं टॉप 100 हमारे जो इंस्टीट्यूशंस में से हमारे आयुष का जितने भी जो अलग अलग स्ट्रीम के इंस्टीट्यूशंस को भी लाने के लिए प्रयास किया जाएगा। ये हमने कार्य योजना तैयार कर लिया है। इसी तरह का अगर आप देखा जाएंगे तो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स इस समय हमारा जो आयुष नेटवर्क, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ अगर आप देखेंगे तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपरागत चिकित्सा फॉलो करते हैं। उसी के तहत वहाँ पर एक सीमित संसाधन भी है कुछ क्षेत्र में बहुत अच्छा विकसित हुआ है। उसका हमने एक गैप आइडेंटिफाई करके एक पूरा विस्तृत कार्य योजना हमने तैयार कर लिया है। इसके लिए हमारा जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेशनल आयुष मिशन के तहत हम स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को हम सपोर्ट करते हैं। उसके तहत वहाँ पर हम हर गांव लेवल तक डिस्पेंसरीज का स्थापित करें और जैसे हमारा जो सिस्टम है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी रेफरल सिस्टम है, इसी तरह हमारा गांव लेवल में डिस्पेंसरी रहेगा। फिर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक हमारा जो है 50 बेडेड हॉस्पिटल, फिर हायर लेवल में हमारा जो एम्स के तरह हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, एक हायर टेरिशरी रेफरल यूनिट के तरह करने का भी एक कार्य योजना हमने तैयार कर लिया है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनका हमने प्रॉपर क्वालिटी कैसे इंश्योर करना है उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज तरीके से उसको हमने कर लिया है। और साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार जितने भी हमारे पुराना जो है कानून है उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अभी डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ मेनी जो माइनर ऑफेंसेस है उसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत कुछ हमने कर लिया है और आगे भी हम उसके लिए कमेटी गठित करके और भी हम कार्य कर रहे हैं। इसी तरह हम 4 मुख्य क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। All right, so those are the focus areas of the ministry. Also, let's get in Dr. Shastri here. Dr. Shastri, as the Member Parliament mentioned about certification, I think that is a very important issue, and also standardization. Now, I'd like to understand from you, one of the biggest concerns for this particular sector is, of course, the presence of quacks all around. So do you think as far as standardization is concerned, the industry has to step up? The ball is in the court of industry now. ये यार एब्सोल्युटली राइट है। अभी देखिए ये जो क्वालिफिकेशन वगैरह की सर्टिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं वो मॉडर्न सिस्टम में भी अभी भी है, इतना स्ट्रीमलाइंड है, तो इसलिए वो नेगेटिव पे नहीं जाएंगे। उसमें से हम पॉजिटिव क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाएंगे वो कामयाब होगा।
तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में ये सरकार जितना मदद कर रहे हैं आयुष सिस्टम्स के लिए, वो बहुत माननीय है। और इसमें आपको एक करना है, पहली चीज़ स्टैंडर्डाइजेशन की आपने जो बात किए थे ना, अभी 1 साल पहले जो योजना शुरू की है, अब सच हो रहा है वन हेल्थ वन स्टैंडर्ड का। हमारे पास इंडियन फार्माकोपिया है, आयुर्वेदा फार्माकोपिया, सिद्धा, यूनानी, होम्यो, इतने फार्माकोपिया जो है, इन सबको मिला के पहले एक स्टैंडर्ड बनाना, ये काम शुरू हो गया। मेरे ख्याल से जल्द पहले वॉल्यूम से ला रहे हैं। ये बहुत अहम चीज़ है आज के दिन में। तो ये काम तो शुरू हो गया। दूसरी, आपकी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस अभी आप देखेंगे तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी हो रहे हैं, और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड सोर्स पे, मतलब अगर आप कोई जड़ी बूटी उगा रहे हैं उसके लिए भी सर्टिफिकेशन रखे हैं, वो एक हो रहे हैं। और प्रैक्टिशनर्स के लिए वगैरह अभी सेंथिल जी बता रहे थे, जॉइंट सेक्रेटरी, रिसेंटली दे हैव रिवैम्प्ड द एंटायर सीसीएम स्ट्रक्चर। ये सब चल रहे हैं। अब हमको ये की करना है, तो जैसे आपकी स्ट्रीमलाइन हो गया आपकी एजुकेशन, इंडस्ट्री को जैसे आपने कहे स्टैंडर्ड्स अपने आप करनी है, ये सेल्फ रेगुलेशन होनी है। पहले ज़माने में अगर देखें, जब तक भारत में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ था बिजनेस कम्युनिटीज़ को, वहाँ स्टैंडर्ड बहुत था और है। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, आज की डेट में एक्सट्रैक्ट्स जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। इंडिया के अंदर भी है, जब तक दवा नहीं बना तब तक भी स्टैंडर्ड नहीं है और लाइसेंस भी नहीं है। लेकिन इतनी अनऑर्गेनाइज्ड रहते हुए सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से इनकी क्वालिटी, अगर देखेंगे आप कोई भी एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, स्पेसिफिकेशंस के साथ ही मिलेगा आपको, क्योंकि कंपनियां खरीदते नहीं। अगर आपकी इंपोर्टर्स है किसी कंट्री का, वो अपनी जो स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक ही लेते हैं। तो मेरे कहना ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन और रेगुलेशंस जो है इंडस्ट्री के लिए वो अहम चीज़ है। हमारे पास आज की डेट में मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज़ में नीम की पत्ते एक्सपोर्ट क्वालिटी मिलता नहीं, डिमांड बहुत है। तो इसके लिए सर्टिफिकेशन जो एनपीओपी सर्टिफिकेशन हो आज की डेट में, या कि आपके हलाल सर्टिफिकेशन, बहुत सारे सर्टिफिकेशन जो है इसकी व्यवस्था बना हुआ है। सिर्फ इसकी जो जानकारी है शायद छोटी कंपनियों को देना है, और इसमें आयुष भी बहुत सारे वर्कशॉप्स कर रहे हैं। थोड़ा इसको नंबर बढ़ाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये सरकार जितना मदद कर रहे हैं आयुष सिस्टम्स को, शायद इससे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो पूरा हो जाएगा। So, a very important point that Dr. Shastri raised from his point of view, from industry's perspective, that probably awareness is more important and the onus, of course, lies on the ministry. Yes. अगर आप देखेंगे तो right now we have the stakeholder meeting arrangements. So recently we had convened a meeting with all stakeholders, particularly drug manufacturing companies and also the state government, because the public health being state subject, the issuing licenses and all comes under the state government. So we have organized a detailed meeting, and also we would like to develop a system, so the transparent system, so that we can ensure the quality at manufacturing level, and also we would like to take this technology at global level. Recently we have due to Honorable Prime Minister's efforts, we have recently laid foundation stone for the global center for traditional medicine at Jamnagar, Gujarat. So the main purpose of this center is to develop a standard not only for India, the entire at global level. We will have to disseminate the information. So we are the leader in this traditional medicine sector. So that is why our team members, the research scientists and all, everybody is working towards to develop a standard SOP, how to give the quality, how to ensure the quality raw material, so that we can export to the other countries. Right, of course. And as Mr. Anil Agarwal was mentioning, that post-COVID, the importance of Ayurveda, the importance of Ayush has increased manifold. सर, ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार को, मंत्रालय को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इसको ग्लोबल बनाना है, तो उसमें क्या और ऐसे कदम हो सकते हैं? नहीं, देखिए, जैसा अभी शास्त्री जी ने भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आयुष मंत्रालय इससे पहले तो था ही नहीं, माननीय मोदी जी ने ये मंत्रालय इंट्रोड्यूस किया है।
और वो चाहते हैं कि इस मंत्रालय का कामकाज इतना बढ़े कि ये एलोपैथ की जो हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दे। आप देखिए बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जो आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, मैं उससे हट के बात कर रहा हूँ। आपको खांसी हो जाए, अगर आप गर्म पानी के साथ हल्दी ले लें, शहद ले लें, ठीक हो जाता है। नथिंग यू रिक्वायर मोर। आप किसी एलोपैथ डॉक्टर के पास चले जाइए तो वो आपको एंटीबायोटिक दिस वो दुनिया भर की दे देगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को हमको आगे बढ़ाना है। जैसे कहते हैं ना कि घर में जो आपकी जो किचन है उसमें बहुत सारे नुस्खे आपके हैं, उसको सर्टिफाई करना है और उसको ग्लोबली बताना है। हमारी जो हर्बल जो है वो बहुत बड़ा एक वो है। आप उत्तराखंड में आप जाइए, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ, अभी मुझे एक सज्जन ने बताया, यू विल सरप्राइज टू नो, एक मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, एक जड़ी होती है, उसकी जड़ जो रूट है उसको पीस के देसी घी के साथ आप खा लीजिए, 24 घंटे में आपकी हड्डी जुड़ जाती है। ओके, यस, एंड आई हैव सीन। अब उसको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, उसमें किस तरह से वो, अब जिसे अगर आपको मास लेवल पे करना है तो उतना उसको उगाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें हैं, हमको फैसिलिटेट करने के लिए सरकार तैयार है, सरकार सब्सिडी देने के लिए तैयार है, लेकिन उसका सर्टिफिकेशन तो होना। जैसे मैं ही भूल गया, क्योंकि मैंने एक बार वो सुना और मैंने एक अपने दोस्त के साथ वो एक्सपीरियंस देखा है। एंड द एज ऑफ द जेंटलमैन इज अराउंड 72। तो आप समझिए 72 साल के एक आदमी की 24 घंटे में हड्डी जुड़ जाती है, जबकि आप जो प्लास्टर लगाते हैं दैट टेक्स 4 to 6 वीक्स। तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें क्या है किसी को नहीं पता। अब उसमें आवश्यकता है कि उसको हम लोग देखें, उस पर रिसर्च कराएं, उसका अगर और बेटर वर्जन हो सकता है वो करें। एलोपैथ क्यों बढ़ गया, आयुष क्यों पीछे रह गया, इसका एक मेजर कारण ये है, हमारे यहाँ अगर किसी वैद्य जी के पास कोई चीज़ थी ना तो वो उसको अपने साथ ले गए, उन्होंने अपने बच्चों तक को नहीं दी। एज फॉर एलोपैथ में है, दुनिया में कहीं भी किसी ने कोई रिसर्च की है, उसने पेपर पब्लिश किया, दुनिया ने उसमें और काम किया, अगर उसमें और बेटर कुछ हो सकता था वो सब किया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का इस ओर फोकस है, और जिस तरह से सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, पहले कहीं थे ही नहीं। आज पूरे मंत्रालय में रिसर्च सेंटर बनाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट सेंटर बनाए जा रहे हैं। जैसे मैं गाज़ियाबाद से आता हूँ, वहाँ एक यूनानी का बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और आप देखिएगा आने वाले समय में इसका बहुत लाभ जनता को मिलने जा रहा है, और ये मिनिमम कॉस्ट पे आपको अवेलेबल है। जैसे आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, अब तो खैर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भी बहुत काम करा दिया, जेनरिक मेडिसिन स्टोर खोल दिए हैं। अदरवाइज तो आप देखिए ब्रांडेड के नाम पे बहुत ज़्यादा 3 गुना 4 गुना दवाइयों के दाम थे। मैं अभी एक पिछले 2 मीटिंग में कैंसर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो 8 गुना 10 गुना तक दवाइयों की कॉस्ट थी। अब एम्स ने अपनी फार्मेसी शुरू की, उसमें कम कॉस्ट पे मिल रही है। बट ऐसी भी चीज़ें हैं जो इसको बेटर कर सकते हैं, उसमें रिसर्च की ज़रूरत है, सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। और आज तो माननीय मोदी जी ने पूरा एनवायरनमेंट कर दिया है, दे दिया है, फंड दे रहे हैं। तो मुझे लगता है जो अभी जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने भी बताया, 2047 तक इसके ऊपर बहुत काम होगा, और जो हमारा ये अमृत काल है, इस आने वाले 25 साल में आयुष मंत्रालय बहुत अच्छा काम करेगा। Right, sir. Another very important aspect that you raised, of course, is about research. Mr. Pandian, research, innovation, R&D, focus, funds, all these areas, again, as I was talking to Dr. Shastri, where the industry has to step up, here the government or the ministry has to step up. माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत इम्पॉर्टेंट एक निर्देश है हमारे मिनिस्ट्री के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उसको कैसे हम नीचे मतलब ग्रास रूट लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक कैसे डेवलप किया जाए। उसमें अगर आप देखेंगे एम्स के दर्ज पर हम लोगों के यहाँ भी जो है एक नेशनल इंस्टीट्यूट, पहले सबसे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हमने स्थापित किया है सरिता विहार में, नई दिल्ली में। उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। उसी के तहत अभी उसका सैटेलाइट इंस्टीट्यूट हम गोवा में बना रहे हैं। हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में है, उसका जो है सैटेलाइट इंस्टीट्यूट हम बना रहे हैं नरेला दिल्ली में बना रहे हैं, बॉर्डर हरियाणा। तीसरा हमारा जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हमारा जयपुर में है, उसका सैटेलाइट इंस्टीट्यूट पंचकुला में हम तैयार कर रहे हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी आपका बेंगलुरु में है,
उसका एक सैटेलाइट इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में हम तैयार कर रहे हैं। इसी तरह लगभग 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके अभी पिछले 3 साल में हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। उसमें अगर अगले 4-5 महीने में हम उसको तैयार मतलब उसको इनाग्रेशन करने की स्थिति में हम आ गए हैं। इससे क्या होगा, आपका एक क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। उसमें जो पीजी स्टूडेंट्स और बाकी जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। वहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ पर फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज़ के साथ हम पूरा जो है वो देंगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा बाकी जो ग्रास रूट लेवल में हमें काम करने के लिए स्टेट्स को हम मदद कर रहे हैं और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी ऐसा जो पीएचसी, सीएचसी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के तहत आयुष सिस्टम में भी हमारा एक जैसे डिस्पेंसरी के ऊपर 50 बेडेड हॉस्पिटल, देन नेक्स्ट एक सुपर स्पेशलिटी आपकी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर करा दिया जाए। इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोग IPHS स्टैंडर्ड, जैसे हम एलोपैथी सिस्टम के लिए एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया, एक डिस्पेंसरी में किस तरह का मैन पावर होना चाहिए, किस तरह का हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह का वहाँ पर इक्विपमेंट्स और ड्रग्स अवेलेबल होना चाहिए। इसी तरह आयुष हमारे जो है सिस्टम में भी ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक के जितने भी हमारे फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर किस तरह का जो स्टैंडर्डाइज करने के लिए उसमें भी अभी कमेटी गठित हो गया है। अब जल्दी से जल्दी हमारा तैयार हो जाएगा रिपोर्ट, उसी हिसाब से हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम उसमें हम काम करेंगे। और सबसे बड़ा इस समय हमारा फोकस है क्वालिटी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करना है पब्लिक को। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। अभी हमारे माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी और माननीय कैबिनेट मंत्री जी स्वास्थ्य के जो है दोनों के तरफ से समय समय पर हम लोग अभी पिछले 6 महीने में लगभग 4 मीटिंग हमने आयोजित कर लिया है। वो 4 मीटिंग में हम दोनों मंत्रालय के बीच में काफ़ी इश्यूज हमने रेज किया है, वो सॉल्व भी हो गया। जैसे अभी हम उदाहरण के लिए एम्स में भी हमारा आयुष वर्टिकल खड़ा करने का एक सहमति बन गया है। अभी जैसे एलोपैथी सिस्टम में एम्स में हमारा आयुष का भी एक वर्टिकल रहेगा, वहाँ पर हमारा पूरा सिस्टम अवेलेबल रहेगा, क्योंकि हमारा 2017 जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है मेन स्ट्रीमिंग आयुष। Absolutely. It's all about mainstreaming Ayush. And also a very important focus, of course, has to be on exports. Dr. Shastri, I'd like to get your view on that. The global market registered a compound annual growth rate of 19.9% over the forecast period, at the hem of which is India, with a strong hold in both local production and exports. India, being the second largest exporter of alternative medicine, also exports to nations that are beginning to consume these practices at an exponential rate. Tell me about the export potential and what is it that the industry needs from the government? Wonderful. Actually, you have touched a very important point where India has seen exponential growth in the exports of herbs and herbal products post-COVID and during COVID also. It's in some of the areas, it's 4-folds and 8-folds, which is very heartening. And you mentioned one point, we are next to China. But we are next to China, but we are 1/5 or 1/6 of what China is doing. That is the kind of opportunity we have. So there exactly we have to pitch in and we have to contribute from our side. There are 2-3 things industry has to do. See, so far, and it is nothing wrong. Actually, we are domestic-centric companies, obviously, because the other part of the globe was not understanding or not believing what you have with you. But these days, because of the COVID, there is a lot of change in the thinking, and that has given the opportunity too. So my point here will be prepare these MSMEs with some kind of incentives, which will lead them to get into the export. But it may not be easy, but it's not difficult or it's not impossible to. What are the things basically required? You need a source certification and organic certification in most of the territories, and then export may not be a problem. But Indian traders or even the manufacturers are happy with the export of their products as a raw material or semi-finished. What does it mean? And this, either chapter 12 or 13 of your HS code, we are exporting most of our herbal products. That means we are making a base for companies which are functioning from outside India to make money, because more than 250 major species are endemic to India, and entire world needs to depend on you. So you need to prepare a list of these products, and if any manufacturer
exports it under Chapter 30, that is after value addition, then India makes money. And for that, you can incentivize. And that's one major step which will change the trade practices multifold. And there will be a quantum jump in our exports. At the same time, the cultivation, especially organic cultivation, is a challenge, but it's not tough. EPIDA needs to be consulted because Right. NPOP India, NPOP USA, hardly there are 3-4 steps difference. And not only that, even if you are collecting this material from wild, there is a certification program. So if you know all these things, then your the products will be having their place in the international scenario. And not only that, let me mention another point about homeopathy extracts or the tinctures. Today, India is importing about 1,800 to 2,000 crores kind of tinctures, Right. whereas you are the hub for homeopathy. So you need to have these tinctures in India and then export, then Absolutely, importing sir. them. So these are the things which will really give India a boost. And Sawarikpa is another opportunity for you. There are countries for whom you can supply Sawarikpa because you have Leh Ladakh and you have part of Himachal, Right. where you see the practice and you streamline small pharmacies in Dharmashala. They make big money Absolutely, while sir. exporting Sawarikpa medicines. And I hope the Joint Secretary has taken note of those important suggestions. And I'm completely out of time on this show. Thank you so much for joining us, Mr. Anil Agarwal, Mr. Pandian, and Dr. Shastri. Thank you. Well, viewers, that's all we had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. Namaskar.